Hello everyone. So this is our fourth lecture on social issues, and in this lecture we'll be taking up the topic of effect of globalization in Indian society. This topic is actually present in your social issues paper 1. It forms part of your social issues section and it forms part of your paper 1. So everyone will be aware of this topic of globalization to some extent. Even you people also must have heard about this phenomenon of globalization because it's not a new phenomenon. Okay, as far as India is concerned and as far as the effect of globalization in India is concerned, you must understand that globalization is not a very new phenomenon. Globalization and the effect of global currents in Indian society, in Indian economy and Indian polity and culture, they were always prevalent as far as India is concerned. So basically we see that the globalization has paced up after the LPG reforms of 1991. It is said that globalization has paced up after the LPG reforms of 1991. LPG, you must understand the full form of LPG and you must have read about it, okay, in your economics lecture also, that what it is, LPG is all about. But even after the liberalization and private, even before the liberalization and privatization of the economies, if you consider history of India, you will always see that because India was not first of all, India was under British rule for a long time. Before that also there were India was under the Muslim rule, so always there was influence of global currents in the Indian society. Okay, always, whether it was during the British rule, because Britishers obviously they went for westernization of Indian society. Even before the in British rule, there was Muslim rule and all that. So always there were influences in the Indian society from outside. So and not just India, in fact all the countries of the world, even if they have started increasing their interconnectedness now. It's not that though the independence amongst different countries, interconnectedness has now paced up and it has increased a lot, and now the world has become like a small village. Okay, the world has become like a small village, that there is so much interconnection and interconnectedness between the different countries of the world, and it has increased to a lot of extent now. But even before the currents of liberalization and privatization, countries were influenced. Okay, their countries are influenced by whatever outside events that were happening outside their boundaries. Countries of this world were always influenced by each other. Okay, it's not that they were immune to the influences of outside currents that were happening. So you must understand that globalization is not a very new phenomenon. It is an old phenomenon. It was always present in the system of this world, and it has always influenced, that is, one country is always influenced by the events which are happening outside the country. No country is immune to it. Okay, now there are some countries who are very closed economies, okay, and so closed and socialist economies like Russia, China, etc. They are still not very much influenced by the global currents as far as their society is concerned, because they are trying to preserve their own culture and their own identity. But still it has, globalization has reached to such an extent, and it has enlarged its roots to such an extent that no country is immune from the events which are happening in the outside world, and every country in this world is affected by the events which are happening outside its boundary. So first of all, a little bit of background was essential, because I know that every one of you must be aware of this term globalization. Every one of you must have heard something related to globalization and its effect. The thing is that in this lecture we will be taking up each and every aspect of globalization and how, what are the pros and cons of globalization. There are negative influences of globalization also, negative impact of globalization also, and positive impact, and we will be studying it as far as the Indian context. Okay, only in the Indian context, that what effect globalization is having on the Indian society, because globalization is a worldwide phenomenon. Every country in the world is affected by this, but here our concern is to study globalization and its effect on the Indian society. तो हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्या इफेक्ट है इस ग्लोबलाइजेशन फिनोमिनन का. ठीक है,
सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इन वन वर्ड? अभी हमने एक बैकग्राउंड देखा कि ग्लोबलाइजेशन कोई न्यू फिनोमेनन नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड फिनोमेनन. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द currents or global currents or events which are happening outside its boundary. Okay, so what is globalization? It is a process of increasing interdependence, interconnectedness and integration of economies and societies to such an extent that an event in one part of the globe affects people in other parts of the world. Like, if for example there is kind of a trade war, as you must have heard, trade war is going on between US and China. Okay, US is increasingly getting a aligned towards, you can say, protectionist policies. Protectionist economic policies are the ones wherein you are trying to protect your industries, your economy against the outside influences. You are applying trade barriers and other sort of such इकोनॉमिक के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोटेक्टिव इकोनॉमी, जब आप प्रोटेक्शनिस्ट जो आप स्टेप्स लेते हो उसके एक अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में. तो यूएस इज इंक्रीजिंगली गेटिंग अलाइन टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एंड सो अ ट्रेड वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना. तो अगर ग्लोबलाइजेशन उस लेवल का आज के वर्ल्ड में नहीं हुआ होता, नो कंट्री वुड हैव गॉट अफेक्टेड, but half of the world's GDP is getting affected because of the trade war which is going on between just these two countries. So it is the impact of globalization only, that the economies, the polity, the societies of all the countries of the world are interconnected to each other to such an extent that any event in any one part of the globe, it affects people in other parts of the world also. If there is any part of the world which is facing any sort of problem, it is high chances that it will have its influence in other parts of the world also. Like for example, अगर वेस्ट एशिया जो है, हमारा वेस्ट एशिया है या मिडिल ईस्ट जो सिचुएशन होती है, वहाँ की जो सिचुएशन है पॉलिटिक, वो बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है. हमेशा टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं या वीक पॉलिटी की जो सिचुएशन है, वहाँ पे वीक पॉलिटिकल कंट्रोल वहाँ पे बहुत वीक है वेस्ट एशियन सोसाइटीज़ में, या जो भी वहाँ का कल्चर है या जो भी वहाँ के टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हैं. ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट अफेक्टिंग the West Asian societies only. Because of that and because of the problems which are happening in the West Asian and the Middle Eastern countries, there's a lot of effect which happens in the global oil prices also. Why? Because now all the countries of the world are interconnected. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम वेस्ट एशिया सोसाइटी में हो रही है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं यूएस पे भी पड़ेगा. यूएस पे पड़ रहा है तो बहुत सारे वर्ल्ड के और भी इकोनॉमीज में पड़ेगा. तो इतना ज़्यादा डीप लेवल का इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस और इंटीग्रेशन हो चुका है इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ का बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट any event in one part of the globe, it affects people in other parts of the world also. Like I gave you an example of US China trade war, and because of globalization obviously it is affecting even more than half of the GDP of the entire world. Okay, फिर इस तरीके के और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ प्रेजेंट की बात करते हैं तो अभी कोविड का सिचुएशन है. अब ये कोविड का सिचुएशन चाइना से ये दूसरे कंट्रीज में इतना क्यों रैपिडली स्प्रेड हुआ? बिकॉज समहाउ वी आर सो मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, इतना ज़्यादा मूवमेंट है पीपल का, गुड्स का एंड मटेरियल जो सोर्सेज होते हैं इनका इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र है, इतना ज़्यादा मूवमेंट है पीपल का वन कंट्री से अनदर कंट्री में, कि इस वजह से इस तरीके के जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं या जो एपिडेमिक टाइप सिचुएशन होती है वो इसीलिए स्प्रेड होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इतना ज़्यादा रैपिड लेवल पे इसलिए स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ गॉट इट बोथ इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑल्सो, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑल्सो. Okay, and it means integration of economies and societies through cross country flows. Basically हो क्यों रहा है? Because there is a cross country flow which is happening of information, ideas, technologies, goods, services, capital, even finance is moving, even people are moving. So people are also moving, exchanging ideas, exchanging capital, exchanging technologies, exchanging information, ideas, goods, services, capital, etc. So all this is happening, and it is showing that more and more integration is happening between economies and societies of this world. So basically this is the idea behind globalization, and ये हमेशा से ही है, but after the countries have got opened up economically, like for example China और ऐसे कुछ countries हैं, और like for example Russia before 1991 it was considered as a socialistic country, closed country.
Okay, they are not open societies. Like US is an open society always, but China and other such socialist countries like Russia, even India before 1991, before the LPG reforms, we were also a closed economy only. हम बाहर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे, बट व्हेन वी ओपनड आवर इकोनॉमी एंड हमने ये सारे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स किए हमारे कंट्री में, उसके बाद भी ओपनड अप मोर. ओपन सोसाइटी का मतलब यही होता है, या ओपन इकोनॉमी का मतलब यही होता है दैट यू आर इंटीग्रेटिंग एंड यू आर integrating with the outside world more. You are trying to increase more trade, you are trying to increase more movement of people, finance, capital, ideas, technologies, and more. You are trying to encourage more free flow movement of people, ideas, technologies, goods, services, etc. between your country and between the outside world. सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन पेसअप तो जो हुआ था हमारे कंट्री में 1991 के बाद ही हुआ, बट उसके पहले भी कुछ लेवल पे ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी. ओके, so it is the outcome of policies of liberalization and privatization. So we have studied about this, that's clear. It's an outcome of various policies that aim to transform the world towards greater independence and integration. So not just India, but it is those various policies which are actually transforming the world towards greater interdependence and integration. It aims to create a borderless world. So basically this is the idea, or a basic idea behind this concept of globalization. Okay, now we'll move ahead. What are the different kinds of globalization? Okay, so globalization takes form as financial globalization, economic globalization, economic level पे भी होता है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी ग्लोबलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी एक फिनोमिनन है, और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी एक फिनोमिनन है. मेनली इसके कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन कौन कौन से एस्पेक्ट्स को टच करता है. तो फाइनेंशियल भी होता है, बिकॉज अंडर ग्लोबलाइजेशन वी नो दैट देयर इज मोर एंड मोर increase of foreign investment in various countries. Okay, if like basically world is divided into two countries. एक तो होते हैं आपका रिच कंट्रीज या जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, एक होते हैं आपका जो कंट्रीज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज होती है, एक होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, तो लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मेनली जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो लैटिन कंट्रीज हैं, या बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं. और जब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप बात करो तो एक होता है डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है ना, एक होता है अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, और एक होता है डेवलपिंग वर्ल्ड. सो लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग सोसाइटी. ओके, हमारा मिड में है, हम बहुत डेवलप्ड भी नहीं है और बहुत अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, तो डेवलप्ड है. पर अंडर डेवलप्ड अनडेवलप्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइक यूएस, यूरोप, जापान. ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बेसिकली कहलाती हैं डेवलप्ड सोसाइटीज़ या डेवलप्ड इकोनॉमीज़. ओके, अब लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन या बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो बहुत डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कहलाते हैं एज फार एज देयर जीडीपी इज कंसर्न. इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. तो हमारे यहाँ मेनली इंडिया हैज़ बीन अ वेरी मच mover of, you can say, globalization. India has played a very important role as far as globalization is concerned on a global stage. Okay, so financial globalization means free flow of finance or capital or free flow of foreign investment between the two different countries. और you can say इस तरीके से भी finance flow करता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स. ओके, दैट देयर आर लॉट ऑफ एमएनसीज और यू कैन से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं. एमएनसीज का नाम आपने सुना होगा, अगर आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो एमएनसीज के बारे में तो पता होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं जो हु आर बाउंड्री लेस. their domain, their working domain is not just limited to any one country. like for example हमारे यहाँ इंडिया में अब आईफोन है और सारे जितने भी हम ब्रांड्स आजकल इंडिया में दिखते हैं वो सारे हमारे इंडियन ब्रांड्स नहीं हैं. दैट इज़ वाई नाउ डेज देयर इज़ मोर कॉल फॉर लोकल थिंग्स एंड लोकल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन. बिकॉज अभी भी जितने भी हमारे कंट्री में भी ज़्यादातर जो ऑपरेशंस वेल परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. तो बेसिकली दे आर डेस्टिन्ड इन यूएस और अदर सच यूरोपियन कंट्रीज, बट दे हैव गॉट these countries or these MNCs, these companies have got their branches or operations in numerous countries of the world. So basically ये होता है MNCs का phenomenon that they are earning profits. Why? Because they are trying to form markets in the various developing and underdeveloped countries because they have got resources. What these MNCs have got? They have got money, they have got finances,
and they have got resources. And these underdeveloped or developing countries like India, they have got potential for huge market, okay, because they are still developing, so there is a lot of demand which is there, and there is a lot of raw material which is present in these developing countries, and a lot of manpower, as you can say. So these MNCs, what they do, they hire this manpower which is present in these developing countries, and they establish their branches over here, because obviously there's also a ready made market for their finished products. So basically MNCs का functioning ये होता है कि अपने country जो origin country destination country है, like for example आप iPhone का example ले लो, उनकी destination country US है, उसके बाद they have established their branches in various countries, and वहाँ पे वो operate कर रहे हैं by hiring the manpower of those different countries, by establishing their own markets in the different countries. तो MNCs के थ्रू फंक्शन करता है, और इससे क्या हो रहा है कि दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन दीज डिफरेंट कंट्रीज. MNCs के सिवा बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को स्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, बिकॉज वहाँ पे एक रेडीमेड मार्केट उनको मिलता है और बहुत सारे और भी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो स्टैब्लिश करते हैं अपने आप को. तो ये जो एक फिनोमिनन है, ये होता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में भी वही सारी चीज़ें हो जाती हैं. मेनली मोर एंड मोर ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंडर. मोर एंड मोर पीपल का मूवमेंट होता है, आइडियाज़ का मूवमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होता है, because these developed countries, they are very much technological advanced countries, so they are sharing their technological secrets or technological expertise even with these underdeveloped or developing countries, so that they are also coming in pace with these countries, डेवलप्ड कंट्री. से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में वही सब कुछ होता है कि लिबरलाइजेशन कर दिया ट्रेड का, एंड बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ ट्रेड वगैरह हो रहा है, ये सारा हो जाता है आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है, दैट देयर इज़ नो बैरियर टू एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर, और या व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इन डिटेल वी विल स्टडी इन लेटर. फिर टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का इंटरचेंज होता है. ठीक है, अब हमारा कंट्री में इतना ज़्यादा रिसर्च डेवलप्ड नहीं है, तो जितनी भी R&D टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लाइक जो भी हम स्पेस के फील्ड में जो भी इंडिया एडवांसमेंट्स करता है, या इसरो जो या DRDO जो एडवांसमेंट्स करता है, वो इसलिए करता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने बाहर से इंपोर्ट करी हुई हैं. ठीक है, सिमिलरली एग्रीकल्चर की में फील्ड की बात करें, सिंपल एक फॉर्म है एग्रीकल्चर का, ऐसे तो इंडस्ट्रियल भी बहुत होते हैं, पर एग्रीकल्चर में भी जो भी हमने एडवांसमेंट्स किए हैं अपने उसमें, वो हुआ क्यों, बिकॉज वी हैव समहाउ इम्पोर्टेड द टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, वहाँ से हमने इंपोर्ट करी हैं बहुत सारी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़. फिर बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड जो सीड्स के वैरायटीज़ होते हैं, या एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से. तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होता है. अब लाइक फॉर एग्जांपल हमने इंडिया में इज़ अ वेरी पावर हाउस ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ओके, जो IT के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हमने डेवलप किए, तो वो सब हमने कहाँ से इंपोर्ट करा, कहाँ से हमने सीखी वो सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, वो सब हमने बाहर से इंपोर्ट करके खुद भी फिर डेवलप किया उस चीज़ को. तो वो होता है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन. फिर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, like because of the increasing awareness, okay, because we are seeing that how the various countries of the world are managing their polity, how the various countries of the world are functioning, and they are maintaining their administration, their governance systems. So we are also kind of importing those political thoughts in our country. Like for example, increased awareness of people's participation, increased awareness for women's rights, increased awareness for, like for example, अगर ये नोटा वाला जो फीचर है आया हुआ है कि आप किसी भी पार्टी को वोट ना दो. ठीक है, ये जो नोटा का फीचर आया हुआ है, ये भी सारे आइडियाज़ हमने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि बाहर के कंट्रीज़ में कौन कौन से पॉलिटिकल करंट्स जो चल रहे हैं, उससे वो हम, इवन द इंडियन सोसाइटी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. ओके, एंड देन कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. सो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, दैट in what manner does this phenomenon of globalization affects the various cultures of the world. तो कल्चर में क्या हो रहा है, बेसिकली कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर का हो रहा है इंटरमिंगलिंग. ओके, इंटरमिंगलिंग हो रहा है. लॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ द वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ अदर कंट्रीज.
even they are imbibing those cultural influences in their own country also, and they are also exporting some cultural ideas in other countries also. Like for example, अब हम कल्चरल डोमेन की बात करें तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा लेवल पे इन्फ्लुएंस हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है इंडियन सोसाइटी का, एंड हमारा जितना भी क्लोथिंग का स्टाइल है या जितना भी हमारे फूड हैबिट्स हैं या जो भी हमारा आर्ट है वो सब कुछ इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड से. नथिंग इज़ जस्ट प्योरली इंडियन नाउ, एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड. ओके, हमारा जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारा क्लोथिंग स्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, इवन दोज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड. लाइक फॉर एग्जांपल, पहले जो हमारे मैरिज वैल्यूज़ थे या जो हमारे फैमिली के जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ थे और वो सारी चीज़ें थी, अब वो सब कुछ चेंज होकर न्यूक्लियर फैमिली में और इन सारे जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, इंडिविजुअलिटी पे जो फोकस है वेस्टर्न वैल्यूज़ का, एंड नॉट ऑन दी सोशल इंटीग्रेशन बट इंडिविजुअलिटी, उस पर बहुत ज़्यादा हमारा इफेक्ट पड़ा है एज फार एज द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर कंसर्न. ठीक है, फिर हमारा जो जॉइंट हमारा जो ये जो एक इंक्लिनेशन हो गया है टुवर्ड्स वेस्टर्न फूड लाइक चाइनीज़ फूड और अदर सच काइंड ऑफ फास्ट जंक फूड, ये बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ा है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू. ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेरियस फूड जॉइंट्स या बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी चेन बाहर की है बट इंडिया में वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. तो ये सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी की वैल्यूज़ के ऊपर, वो होता है आपका कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन को. ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, सोसाइटी के भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पॉलिटिक्स को भी ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है, एंड इकोनॉमी को तो करता है. फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज सीन इन द इकोनॉमी ओनली, बिकॉज इकोनॉमी में फ्री ट्रेड होने लग जाता है डिफरेंट सोसाइटीज़ के बीच में, और ज़्यादा एक्सचेंज होता है पीपल का, आइडियाज़ का, कैपिटल का, फाइनेंस का मूवमेंट होता है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री. हम एड प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एड, किसी भी अगर डिजास्टर ऐसे किसी भी सिचुएशन में हम एक एड प्रोवाइड करते हैं. देन वी आर ऑल्सो टेकिंग एड्स एंड हेल्प एंड मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम इवन दी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक. तो ये जो फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ फाइनेंस हो रहा है, कैपिटल हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, या यू कैन इवन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, ये सब क्या है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली. ओके, now what are the impacts of globalization in India? So basically we will study about the impacts of globalization in full detail. हम various categories में करके पढ़ेंगे, बट अगर हम एक नॉर्मल इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें कि एक जो नॉर्मल की अगर हम एक पॉइंट वाइज पॉइंटर्स के थ्रू समझने की कोशिश करें कि एक ब्रीफ आइडिया लें कि क्या इम्पैक्ट होता है, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट होता है, तो अगर इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वेरियस गवर्नमेंट्स की टुवर्ड्स देयर सिटीजन्स, दैट हैज़ इंक्रीज्ड. बिकॉज अगर हम देखते हैं कि US में कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या और कहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, तो हमें होता है कि हमारे कंट्री में भी वैसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, फिर टेररिज्म ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ गॉट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑल्सो एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. So what is one of the negative impacts of globalization? Terrorism. So it is because of कि इतना ज़्यादा free flow movement हो रहा है people का, and that is why even the terrorist ideologies, जो religious sentiments होते हैं या जो fundamentalist ideologies होती हैं, वो भी travel करती हैं from one country to another. Okay, and जो terrorism का इतना ज़्यादा flourish हो रहा है वो इसकी वजह से ही हो रहा है because of globalization. Because people and their ideas, even their fundamentalist ideas, they can travel in any part of the world because of globalization. इतना ज़्यादा interlinkage हो गया है. साइबर क्राइम्स जो इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी इवन इन दिस लेक्चर दैट आई विल मिस, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज सच अ यू कैन से सच अ वाइड कॉन्सेप्ट दैट आप उसको किसी एक फॉर्म में पढ़ ही नहीं सकते. इवन देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज सच अ वाइड वेराइंग कॉन्सेप्ट दैट आप उसको किसी एक उसमें एक फिनोमेनन में, तो एक स्लाइड में या एक लेक्चर में आप समझ ही नहीं सकते पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन को. बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम उतने ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे. बट इट्स अ वेरी वाइड फिनोमेनन and it has got multifaceted, actually it's multifaceted. पूरी चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा.
बट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टेररिज्म पे भी इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबलाइजेशन का, जो टेररिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं या फिनोमिनन होता है, या इवन जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो कभी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए ही प्लान किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अपनी ही कंट्रीज में टेररिज्म हो रहा है। टेररिस्ट अटैक्स हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड या आउटसाइड इन्फ्लुएंस से ही किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ such an interlinkage between different societies of the world. So globalization का एक negative impact है terrorism. Then obviously shrinkage of the world, because इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेलीकम्युनिकेशन का एंड मोबाइल फोन्स का एंड सच अदर टेक्नोलॉजीज का, इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी इतना ज़्यादा नहीं था इंडिया में। बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन such the internet penetration even in the rural areas has increased. Even in the rural areas internet penetration has increased a lot, and mobile phones, telecommunication and such things have increased, जिसकी वजह से world has become a small village. आइडियाज़, अगर किसी भी वर्ल्ड में कोई भी इवेंट होता है उसके बारे में the ideas flow so quickly because of the deep penetration of internet and mobile technologies that world has एक्चुअली श्रिंकिंग वर्ल्ड का फिनोमिनन दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन को, कि ग्लोबलाइजेशन ने जो एक काम किया वो ये किया है कि इट हैज़ श्रंक द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड हैज़ टर्न इनटू अ स्मॉल ग्लोबल विलेज, ठीक है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड होता है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं, लाइक सार्क हो गया, एशियान हो गया, उसके थ्रू फ्री ट्रेड्स होता है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कैपिटलिज्म है, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली दैट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द, you can say one of the parameters or one of the influences of capitalism only, because capitalism की ही आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड हो बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज एंड जितना ज़्यादा ओपन इकोनॉमी हो और कहीं ना कहीं मार्केट कंट्रोल या गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, यही तो कहता है कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल लेस हो इकोनॉमी के ऊपर, एंड वही हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कि कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो प्रमोट हो रही है और दो कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो यही तो कैपिटलिज्म होता है, ठीक है। देन मोनोपोली ऑफ पावर, ओके। देन इन्वायरमेंट को बहुत एक आप तरीके से कह सकते हो कि इन्वायरमेंट के लिए दोनों वो चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबल लेवल पे। बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स या बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंसेस या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, एनजीओज वर्क कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को बचाना कैसे है उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन ट्रेडिंग हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कार्बन ट्रेडिंग, सिक्वेंशियल ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं सो दैट इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, बिकॉज every country of the world understands the importance of sustainable development, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी एक कंट्री के फॉलो करने से नहीं होगा, all the countries have to cooperate with each other as far as the environment protection is concerned, ठीक है। तो environment protection के लिए बहुत सारे अवेयरनेस भी जनरेट करे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के भी हैं और वैसे भी ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिलकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट के लिए करते रहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो, बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है और जो ये सारी चीज़ें होती है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो भी इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए इतना डिमांड इतना बढ़ गया है बिकॉज सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड, तो ऑब्वियसली डिमांड इज इंक्रीजिंग टू सच एन एक्सटेंट कि उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। प्रोडक्शन को इस एक्सटेंट तक बढ़ाया जाता है कि ऑब्वियसली इट डिप्लीट्स द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन रिटर्न। सो बेसिकली ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो रहा है इकोनॉमीज़ का, ऑब्वियसली इक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है बट इनइक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक रिच पुअर में डिवाइड हो रहा है, रूरल अर्बन में जो डिस्पैरिटी आ रही है बिकॉज ऑफ obviously it is the urban areas which are getting more benefits of globalization, and obviously that will increase the disparity between the rural and the urban areas of the country। और जो ऐसे countries होंगे of the world जहाँ पे rural population बहुत ज़्यादा है, like for example इंडिया में, वहाँ पे ये disparity और भी ज़्यादा बढ़ेगी बिकॉज
जो फ्रूट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो ज़्यादा कहाँ पे हैं, अर्बन एरियाज में हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो दैट द अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव इंक्रीज्ड. ओके, देन आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो गया है. ठीक है, आउटसोर्सिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे. ब्रांड्स के लिए जो हमारा एक मतलब इंक्लिनेशन है वो बढ़ गया है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है. ठीक है, पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी रिड्यूस भी बहुत हुई है, एंड बहुत सारे कंट्रीज में पॉवर्टी इंक्रीज भी हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ठीक है, तो व्हाट आर द salient फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन that we will study under the head of impact the globalization has on the economy of India. बेसिकली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, स्टैंड्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस वेंचर विद इन देयर ओन कंट्रीज और अब्रॉड. सो एक जो लिबरलाइजेशन का ये जो एक फिनोमेनन है, दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ऑन द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो. दैट लिबरलाइजेशन हुआ है हमारे कंट्री में, and the entrepreneurs have got freedom to establish any industry or trade or business venture even within their country or abroad. Then free trade हुआ है under globalization. The trade barriers have been minimized and there is more and more free flow of trade relations among all the nations. Okay, तो ये एक हो गया चीज़. ठीक है, फिर लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम्स ऑल्सो, दैट वी आर इम्पोर्टिंग ऑल्सो एंड वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री टू वेरियस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिर क्या होते हैं, दे अक्रू मोर टू द डेवलप्ड कंट्रीज as they are able to expand their markets in their countries through the multinational corporations. MNC stands for multinational corporations. तो ये एक चीज़ है कि ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है बेसिकली, कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है वो हम किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग द डिस्पैरिटी. ओके, देन इट क्रिएट्स एफिशिएंट मार्केट्स. ओके, आउटसोर्सिंग का फिनोमिनन हो रहा है. इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी रिक्रूट्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज ऑफन फ्रॉम इवन अदर नेशंस. देन देयर इज एन इंक्रीज्ड कंपटीशन between the domestic production and the outside, you know, the foreign companies के बीच में जो एक competition की spirit हो रही है as far as their product quality is concerned वो हो रहा है. ठीक है, liberalization of trade has happened, investment and capital flow is happening, so lot of investment is happening and even capital flow is happening. Liberalization of the domestic economy and enhanced incorporation of India with the global economy helped to step up the GDP growth rates also. So even this has also happened that जो liberalization हुआ है economy का और increased incorporation हुआ है इंडिया का global economy से, उससे कहीं ना कहीं हमारे GDP पे भी positive impact पड़ा है. आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आउटसोर्सिंग है ये वेरियस MNCs करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं. उसमें क्या होता है कि कोई भी MNC क्या करती है कि थोड़े कम टाइम के लिए दूसरे कंट्री के जो वर्क फोर्स है उसको हायर करती है, उसको ट्रेन करती है अपने लैंग्वेजेस में, एंड वहाँ उनको ईजियर या चीपर रेट्स में रिक्रूट करके अपना जो काम है वो उनसे करवाती है. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग. ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो जितने भी आपके ये BPOs वगैरह जो हैं, ठीक है, ये BPOs वगैरह जितने भी काम करते हैं इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज ही इन्वॉल्व होती हैं एंड ये आउटसोर्सिंग के थ्रू ही ये काम करते हैं. तो ये भी एक इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का. इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स, लाइक फॉर एग्जांपल क्योंकि फॉरेन गुड्स की जो क्वालिटी होती है इट इज़ वेरी मच एनरिच्ड, सो ऑब्वियसली द लोकल गुड्स या जो लोकल कंपनीज है दे आर फेसिंग अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन कंपनीज. ओके, एंड कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए. ठीक है, तो ये सारे जो इम्पैक्ट हैं ये हैं इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के ऑन द इंडियन इकोनॉमी. We will proceed with the other impacts and what are the other impacts of globalization in our next lecture. इकोनॉमी में भी देखेंगे हम, कल्चर में भी इम्पैक्ट देखेंगे, और हर एक जो इंडिया का हर एक मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का. ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर.